Hello students, welcome to Wonder Why. Today we are here to talk about an important topic, that is NCQG, that is New Collective Quantitative Goal. This is a buzz topic currently as COP29 is about to happen in Baku, that is the capital of Azerbaijan. So this is an important topic जो अब आपको न्यूज़पेपर में बार बार देखने मिलेगा. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ दिस एंड अगेन वी विल टॉक अबाउट इट्स बैकग्राउंड, व्हाट इज़ NCQG and its future impact. So NCQG is related to climate finance. There is an important contention among climate finance between developed and developing nations. So this is an excerpt from today's newspaper. So let's see what is this NCQG. So before understanding what is NCQG, let's dive into its background. थोड़ा उसके background के बारे में जान लेते हैं. So in 1992, a summit took place, which is famously known as Earth Summit in Brazil. Earth Summit. So in Earth Summit, 3 documents were signed. One was UNFCCC, one was UNCBD, UNCD. UNFCCC was United Nations Framework to Combat Climate Change. All the 3 institutions have different tasks, and all these 3 institutions were made to combat climate change. So what was the function of UNFCCC? UNFCCC's function was to limit what? Greenhouse gas emissions. So what are these greenhouse gases as per UNFCCC? Your carbon dioxide, your methane, your nitrogen oxide, your hydrofluorocarbons, your perfluorocarbons, your sulfur hexafluoride, and your nitrogen trifluoride. So these are your greenhouse gases as per UNFCCC. So in 1992 this was signed, and after 1995 every year after 1995 UNFCCC met, and this meeting of UNFCCC is known as COP, that is Conference of Parties, when all the members, how many members are there? UNFCCC has currently 198 members, 197 countries plus European Union. So after 1995, all these members started to meet every year barring 2020 because of COVID. In 2020 में they didn't meet, मिले नहीं थे. 1995 से लेके आज तक हर साल मिल रहे. Every year UNFCCC is conducting a COP, that is Conference of Parties. Certain important COPs took place. One of the important COP, one of the groundbreaking COP was COP21. COP21 was one of the most important COPs held in 2015. It is famously known as Paris Agreement. आप सभी ने सुना होगा Paris Agreement को कहीं ना कहीं. What it stated? It stated that global emissions जो हो रहे हैं उसको हमें कम करना है ताकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर पाए. जो हमारा बेंचमार्क है 2 डिग्री सेल्सियस एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, प्रेफरेबली 2% से और कम कर पाए तो 1.5 रखना है. तो आइडियली 2 होना चाहिए, बट अगर और हम मेहनत करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी हम लेके जा सकते हैं. दिस वॉज पैरिस एग्रीमेंट. नाउ पैरिस एग्रीमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट नॉट ओनली गेव दिस थिंग ऑफ global emissions but also gave certain mechanisms. The first mechanism was nationally determined now what is nationally determined contribution? It said that countries has the onus. Countries will give their targets, we won't give them targets. Will itself set their targets and submit to UNFCCC, and UNFCCC will monitor those targets. So this was your nationally determined contribution. Every 5 years, country has to submit their nationally determined contributions. So after Paris Agreement, another important agreement was Copenhagen COP15 that happened in 2009.
Now, or in order to complete their NDCs, what developing nations said, we need money. We don't have money. And we haven't done so much harm to the environment as developed countries have done. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज पहले से ही यूएस ये पहले से ही एमिशंस कर रहे हैं, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या स्मॉल आइलैंड नेशंस या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ये सारे कंट्रीज़ ने तो 1% भी एमिशन नहीं किया होगा जितना ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कर चुके हैं और करते आए हैं. तो व्हाट दे आर सेइंग इज़, हम क्यों इतना पैसा डालें जब हमने कोई गलती ही नहीं की है. तो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर डिमांडिंग इज़, दे आर डिमांडिंग कि डेवलप्ड कंट्रीज़ like UK and US should provide money plus technology to whom? Developing and underdeveloped nations. In order to what? In order to combat climate change. On this particular note, COP15 happened in Copenhagen, which talked about climate finance. It said कि 2020 से कंट्रीज़ को $100 बिलियन कंट्रीज़ को 2020 तक देना होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को. ये बात हुई COP15 में 2009 में. दिया कुछ भी नहीं जा रहा था. फिर हुआ COP21 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में. पेरिस एग्रीमेंट में बोला कि 2020 तक नहीं, एक काम करो 2025 तक कर दो. 2025 के बाद एक नया क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा. ठीक है, तो COP15 में बात हुई थी कि 100 बिलियन 2020 तक दिया जाएगा. फिर पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई कि वो 2020 नहीं 2025 तक किया जाएगा, और 2025 के बाद एक नया क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म्स को डेवलप करने की ज़रूरत रहेगी. ठीक है, तो ये चीज़ हुई. तो अब है 2024, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा आपका 2025. सो इसी चीज़ के लिए क्या लाया गया है आपका न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स. दिस इज़ नथिंग बट न्यू क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म जो पेरिस एग्रीमेंट में तय हुआ था. सो है क्या ये? सी, अब $100 बिलियन की बात हुई थी, बट ये $100 बिलियन कभी भी डेवलपिंग नेशंस को मिले नहीं हैं. अगर वो मिले हैं तो भी वो डेट के फॉर्म में मिले हैं, लोन्स के फॉर्म में मिले हैं. नाउ व्हाट द डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया इज सेइंग, बोल रहे कि अभी $100 बिलियन से कुछ होने वाला नहीं है. वी नीड एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन. कितना डेवलपिंग नेशंस कितना डिमांड कर रहे हैं हर साल? $1.3 ट्रिलियन. इंडिया इज डिमांडिंग $1 ट्रिलियन every year. And see, this $1.3 trillion every year is not a big amount for the global nation, because $1.3 trillion is just 1% of global GDP. जो दुनिया का GDP है उसका सिर्फ 1% है. तो अगर हम देखें 2025 से लेकर 2030 तक डेवलप्ड नेशंस को $5.9 ट्रिलियन देने पड़ेंगे. किसको? डेवलपिंग नेशंस को. दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग आस्क फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, बिकॉज अगर आप देखोगे अदर एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखोगे तो मार्शल प्लान में 1.3% ऑफ GDP दिया जा रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 1.9, कोविड-19 से निकलने के लिए 16.4 ग्लोबल GDP का पैसा खर्च किया गया था. फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडी में जो क्लाइमेट चेंज को कर रहा है उसके लिए 3.6% ऑफ ग्लोबल GDP अमाउंट डाला जाता है. तो इसके लिए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म्स के लिए 1.4% ऑफ ग्लोबल GDP की आस्क है. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग आस्क बाय डेवलपिंग नेशंस टू डेवलप्ड नेशंस. अगर आप देखोगे कितना डिमांड किया है 2030 तक बाय डेवलपिंग नेशंस क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, तो इंडिया ने $1 ट्रिलियन मांगा है. बाकी सब भी आप देख सकते हो किसने कितना मांगा है, बट it is mostly $1.3 trillion is the ask by developing nations to developed nations. So यही $100 billion का जो डिमांड था developed nations से वो पूरा नहीं हो पाया है हर साल. तो इसी वजह से
एक नया न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन फाइनेंस की ज़रूरत थी। इंडिया ने कितना डिमांड किया है? $1 ट्रिलियन पर ईयर। G77 इज़ अ ग्रुप, हर साल $1.3 ट्रिलियन उनको चाहिए। और ये जो $1.3 ट्रिलियन उनको मिलेगा वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में या अदर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड प्रोग्राम में। ये सिर्फ आपका पैसे आपको देने हैं। अगर आप पैसे के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी दे रहे हो, कोई और फाइनेंस कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो उसमें नहीं काउंट किया जाएगा। ना ही वो ग्रांट बेस्ड होना चाहिए, ना ही वो कंसेशनल होना चाहिए, ना ही वो नॉन डेट होना चाहिए। आपको सिर्फ $1.3 ट्रिलियन हमें देना है, बाकी आप कुछ भी करो वो इस $1.3 ट्रिलियन में आप काट नहीं सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर न्यू NCQG. So NCQG अगर in a nutshell if it is nothing but a new climate finance mechanism which demands $1.3 trillion from developed nations in order to combat climate change. So this is your new NCQG. इसमें और फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगे क्योंकि अभी COP29 इज़ ऑन द वे, और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट्स होंगे आई विल कम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन अगर कोई इंपॉर्टेंट रहेगा तो।